बीते लगातार 12 दिनों से संसद में गतिरोध बरकरार है। आज भी संसद के दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ गए। 2 बजे यानी अब तक उन्हें वहां पर स्थगित किया गया था, लेकिन अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है। पहले लोकसभा 12 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा भी हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित है। आपको बता दें कि आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे। इसको लेकर विपक्ष लामबंद है। यहां बता दें कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर खासा हंगामा रहा है जब से यह संसद का सत्र शुरू हुआ है, जिस पर लगातार चर्चा के लिए मांग करता रहा है विपक्ष। लेकिन नियमों को लेकर मतभेद सत्ता और विपक्ष के बीच बना है। प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है इसके लिए विपक्ष। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर भी लोकसभा में हंगामा हुआ। लोकसभा में पिछले हफ्ते पेश हुआ था यह बिल, तब 5 विपक्षी दलों ने विरोध किया था। इससे मौलिक अधिकार का हनन होता है और निजता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी होता। ये लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। सुनते हैं क्या हो रहा है। डॉक्टर भागवत कराड़ जी, आइटम नंबर 11। श्री मेघवाल जी, अर्जुन, आप लोग थैंक यू सभापति जी। मैं नहीं, आपका ही था सुबह। मैं आपको आप बैठ जाइए, मैं आपको दूंगा। आज की कार्यसूची की क्रम श्रृंखला 10। अरे आप अपना स्थान पर बैठ जाइए। तो दस्तावेजों मैंने बोला ना, रखता हूँ। श्री पीपी चौधरी जी, इसके बाद होगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, with your kind permission, I wish to present the 24th report, Hindi and National Affairs, 17th Lok Sabha on the subject India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS as listed against my name at serial number 12. श्रीमती लॉकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आई बेग टू प्रेजेंट राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। मोशन मूव्ड। देयर आर 3 amendments by Sri Tiruchi Shiva, Dr. John Britas and Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Shri Tiruchi Shiva, are you moving your amendment? Dr. John Britas. Sir, I move. Shri Raghav Chadha. Sir, I move. Sir, I move. The statutory resolution, motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Abhishek Manu Singhvi. Sorry. No. Good. I'll follow the procedure. Please bear with me. Please, no. Dr. Abhishek Singhvi. Sorry. Please take your seat. Dr. Abhishek Singhvi. You are holding the floor. Go ahead. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Honorable Chairman, sir. Members of this august House. Mic is on. Honorable Chairman, sir. Honorable members of this august House. As I rise to oppose this retrogressive bill, I ask why no government since 1992, when Delhi's special constitutional status was created, be it a BJP government or a Congress government, be it any other color of the political spectrum, be it the same political party, the center and the NCT, or be it different parties, not one of them has tried to overrule 2 constitution bench judgments. Not tried to overrule 2 constitution bench judgments on the status. Please. Go ahead. The status of NCT.
Why did no government create an authority where the Chief Minister of Delhi is in a minority? Why did no government empower two bureaucrats to overrule an elected Chief Minister? Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in 3 areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number, all of Delhi, for Delhi, by Delhi, funded and budgeted by the NCT government, but the power of appointment of its heads is with the LG. Honorable members of this August House, this तो government... चर्चा चल रही है, अभिषेक मनु सिंह भी बोलते हुए नजर आए। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं इस वक्त। आपको बता दें कि राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा और मतदान आज ही होना है, तो इस पर हिमांशु से बात करते हैं। हिमांशु, अभी राज्यसभा के स्टेटस के बारे में बताएं। अभिषेक मनु सिंह भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को फील किया गया है और इस बिल के विरोध पर अपने भाषण में शुरुआत में ही ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है कि ऐसा क्यों है कि 1991 के बाद से अब तक इस तरह की कोई पहल भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई और पिछले 32 साल में भाजपा की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार है और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्यों ऐसा है कि 32 साल में ऐसी कोई पहल अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार को लेकर इससे पहले भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई? देखिए, ये एक शुरुआती भाषण है। विपक्ष ने अभिषेक मनु सिंघवी जो कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं और इस मामले में कोर्ट में भी जब इस मामले को टेकअप किया गया है तो इस मामले में वो भाग ले चुके हैं लीगल बहस में, कोर्ट्स में, और इसलिए उनको फील किया है विपक्ष ने। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने राज्यसभा में, जहां पर सरकार के पास, एनडीए के पास अपना बहुमत नहीं है, सरकार ने आंकड़े जुटा लिए हैं। सरकार आश्वस्त है इस बिल को पारित कराने को लेकर। अगर आप सिंपल अंक गणित देखें राज्यसभा का, तो बीजेपी के पास 92 सांसद हैं, 92 एमपीज हैं आज के दिन, और हाउस का जो स्ट्रेंथ है वो 237 का है। अगर आप एनडीए के सांसदों की संख्या देखें तो ये बढ़कर 112 हो जाती है। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल, जिनके पास 9 सांसद हैं राज्यसभा में, अगर उनके 18 सांसदों को जोड़ा जाए तो जो एनडीए और उनके समर्थक जो दल हैं, विशेषकर दिल्ली सेवा बिल पर जो समर्थन जुटाया एनडीए ने, वो आंकड़ा बढ़कर 130 होता है। जबकि आज जो सदन की स्ट्रेंथ है, जैसा मैंने पहले कहा, 238 का है। संजय सिंह निलंबित हैं सदन की बची हुई कार्रवाई से और वो इस वोटिंग में नहीं भाग ले सकते, बहस में नहीं भाग ले सकते, तो संख्या घटकर 237 होती है। यानी 119 जो है वो मैजिकल फिगर है बहुमत का, जो सरकार ने जुटा लिया है। जैसा मैंने पहले कहा, सरकार आश्वस्त है कि कम से कम 130 सांसद का जो समर्थन है वो सरकार को मिलेगा और इसलिए सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक नोटिस भी राज्यसभा चेयरमैन को दी गई है कि जो नियम 66 और नियम 67 है, उसके तहत इस बिल का इंट्रोडक्शन जो है वो नियमों के सही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई अध्यादेश सरकार लाती है और उसके बाद जब सदन में, संसद में कोई उसे बिल के रूप में पेश किया जाता है तो सरकार को कारण भी बताना होता है कि क्यों, जब संसद अपने सत्र में नहीं था तो उस दौरान ये अध्यादेश लाया गया, उसकी क्या मजबूरी थी, क्या जल्दबाजी थी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल बहस में भी उठाया जाएगा कि जब सरकार ये बिल लेकर आई तो उसमें सरकार ने ये नहीं बताया है कैटेगोरिकल टर्म्स में कि क्यों मई 19 तारीख को ये अध्यादेश लाने का फैसला किया गया जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। तो बहुत सारे कानूनी पेचीदगियां हैं, बहुत सारे सवाल लेकर विपक्ष इस बहस में शामिल हो रहा है। लेकिन जहां तक अंकगणित का सवाल है, सरकार ने इस बिल के बहुमत में जो भी ज़रूरी आंकड़े चाहिए थे उसे, वो आंकड़े सरकार ने जुटा लिए हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है एक बहुत ही पॉलिटिकली कंटेंशियस बिल रहा है और आपको बहुत तीखी बहस आज अगले कुछ घंटों में दिखाई देगी। शारिक, तो हिमांशु, एक तरीके से ये कहा जाए
कि इस बिल को आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये असंवैधानिक बता रहे हैं, कह रहे हैं संविधान की हत्या है। आउटकम क्या होना है ये शायद उन्हें भी पता है, जिस तरह से हमें पता है। एक तरह जो चर्चा होगी उसमें अपनी बात रखना और सरकार को शीशा दिखाने की कोशिश करना, ये उनका लक्ष्य होगा पूरे बहस के दौरान, कि जो आपने किया भले ही आप लोकसभा और राज्यसभा से नंबर के बल पर पास करा लें, लेकिन सच्चाई ये है। देखिए, इसमें एक दूसरा पहलू भी है शारिक कि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और सांसद हैं राघव बहल, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि हम आगे एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। संसद में भले ही सरकार ने बहुमत जुटा लिया हो, लेकिन जो कानूनी रास्ता है न्याय का, वो हमारे सामने खुला हुआ है। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये अध्यादेश लाया था भारत सरकार ने, उसके फौरन बाद उसे चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने, और वो कुछ दिन पहले इसी जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक संविधान पीठ के पास भेज दिया था। तो आम आदमी पार्टी अब इस मामले पर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर सड़क पर और संसद में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, बल्कि आने वाले समय में जब संविधान पीठ की हियरिंग्स होगी तो वो एक और विकल्प है। ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस पर अभी हमारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जब भी इस पर हियरिंग शुरू करेगी, हमारे पिटीशन को स्वीकार किया गया है, एडमिट किया है संविधान पीठ ने, और वो कानूनी लड़ाई जो है वो भी खत्म नहीं हुई है। कानूनी बहस भले ही संसद में ये बिल सरकार पारित करा ले, लेकिन बिल के प्रारूप पर, बिल का जो स्ट्रक्चर है उस पर जो एक बड़ी कानूनी बहस चल रही है वो संविधान पीठ की हियरिंग के दौरान और आगे बढ़ेगी, और उसमें आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी बात रखेगी। और उसे अब भी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर संविधान पीठ में हियरिंग होगी और फैसला होगा तो उसे न्याय मिलेगा। तो ये एक बहुत ही पेचीदा बिल है, इस पर अभी बहस जो है, कानूनी बहस जल्दी खत्म नहीं होने वाली। शारिक, शुक्रिया हिमांशु, खूबसूरती के साथ इस पूरे खबर पर रोशनी डालने